Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we have met after a long time, in fact, after 1 week. So, dear students, I'm here to discuss the last poem of your book. The name of the very poem it's from I Explain a Few Things, written by Pablo Neruda. Dear students, it's an interesting poem. It's an important poem from your examination point of view. Dear students, before we start its stanza-wise translation, before we start its summary, before we start its central idea and theme and its difficult word meanings, dear students, let us first try to grasp, let us first try to understand the meaning of the title of the poem, what the poem is all about. Dear students, it's actually the name of the poem is I Explain a Few Things. It's a big poem, it's a large poem, and an extract apart from the poem I Explain a Few Things is being taken and written here. Getting? यानी ये एक बहुत बड़ी poem है जिसका नाम I Explain a Few Things. उसी में से एक हिस्सा लिया गया है जो हमने यहाँ पढ़ना है, जिसका नाम रखा गया है From I Explain a Few Things. ठीक है? Are you getting me? Now, what is the meaning of I Explain a Few Things? ये poet जो है, he is explaining a few things to us. Getting? ये कुछ चीजें हमें बयान करता है इस poem में. Now, this was all about the title of the poem, the meaning of the title of the poem. Now, let us try to understand the theme, central idea. It's written there. It's in the box. Let us try to understand what is written in the box. The poem is a lamentation on Spanish Civil War in which the noted poets Federico Garcia Lorca and Rafael Alberti were killed. Dear students, ये जो poem है, ये एक lamentation है Spanish Civil War पे. Now let us try to understand both the words separately one by one. What is Spanish Civil War first? Dear students, Civil War किसे कहते हैं? Civil War कहते हैं खाना जंगी को. Dear students, Civil War, it's a war that the people of the country, they fight against the citizens of his country. Getting? Civil war जो होता है, dear students, actually में it's a war between the citizens of the same country. Yes, are you getting me? It's a war between opposing groups of citizens of the same country. That means the people of Spain, they start fighting with each other rather than the other country. Getting? यानी civil war, खाना जंगी जिसको कहती है, यानी जो अपने आप से लड़े. Getting? यानी बीच में लड़े. Are you getting me? So this is what civil war means. ये जो civil war हुआ था, it occurred in Spain in 1938. यानी people of the country, people of Spain, they start fighting against each other. This is what a civil war means. Now it's a lamentation. ये एक अफसोस है इस civil war पे. क्यों अफसोस है? Lamentation के माने गिरे व फरियाद. It means an expression of grief and sorrow. यानी ये जो poet है, ये गम जता रहा है, ये अफसोस जता रहा है इस स्पेनिश सिविल वार पे. क्यों? क्योंकि इस सिविल वार में कुछ नोटेड पॉइंट्स, कुछ नामवर, नोटेड के मानिए वर्दी ऑफ नोट्स और अटेंशन, कुछ नामवर शायर भी गुजरे, उनका भी कत्ल हुआ है, जो इसके दोस्त थे, इसके भाई थे. The poets are, the names of the poets are, it was Federico Garcia Lorca and Rafael Alberti were killed. ये इसके दोस्त, इसके कुछ पोइट्स, शायर थे इसके दोस्त जो इस जंग में मारे गए, सिविल वार में मारे गए. The poet lived in Madrid, Spanish capital, and that symbolized prosperity, beauty and a promising future. Dear students, ये जो पोइट है, ये मैड्रिड में रहता था जो स्पेन की कैपिटल है. ठीक है? और ये स्पेन जो है, ये मैड्रिड सिटी जो है, ये किस चीज को सिंबलाइज करती है, किस चीज को एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेस इनडायरेक्टली बाय इमेज और फॉर्म. गेटिंग? तस्वीर कशी करती है, प्रॉस्पेरिटी की तस्वीर कशी करती है. यानी ये जो स्पेनिश सिटी थी, मैड्रिड सिटी थी, ये बहुत ही खुशहाल सिटी थी, खुशहाल शहर था. प्रॉस्पेरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्परस, बखत, खुशहाली. ब्यूटी, खूबसूरत शहर था. एंड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, जिसमें प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, जिसमें मुस्तकबिल जो था वो हर एक के लिए प्रॉमिसिंग था, एक अच्छा खासा मुस्तकबिल था हर एक के लिए. ठीक है? जिसमें हर एक को कुछ ना कुछ मिलने वाला था. ठीक है? हर एक सिटीजन इस शहर का अपने लिए कुछ हासिल कर सकता था. एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हम कह सकते हैं. बट द सिविल वॉर डिस्ट्रॉयड इट. लेकिन जो सिविल वॉर के बाद ये हर चीज को डिस्ट्रॉय करता, हर चीज को तबाह करता है.
ब्लड स्पिल्ड एवरीवेयर, और ये खून जो है ये हर तरफ गिरा सिविल वार के बाद, ठीक है, यानी डेवास्टेशन, किलिंग्स, मैसाकर, खून रेजी होती है वहां पे। स्पिल के मानिए द एक्ट ऑफ अलाउइंग ए फ्लू टू एस्केप, गिराना। द पोइट डिस्क्राइब्स डिस्पेयर एंड डेवास्टेशन, टायरनी एंड वेंडलिज्म थ्रू द सिंबल्स ऑफ जैकॉल्स, बैंडेट्स, स्टोन्स, वाइपर्स, फायर, ब्लड एंड बुलेट्स। अब ये जो पॉइंट है ये डिस्पायर को डिस्क्राइब करता है, यानी लॉस ऑफ होप, नाउमेदी दिखाता है, गेटिंग डेवास्टेशन दिखाता है, तबाही को बयान करता है, टायरनी के माने क्रूअल एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट, उसको दिखाता है, वेंडलिज्म को दिखाता है। वेंडलिज्म मीन्स तोड़फोड़। वेंडलिज्म के माने एक्शन इन्वॉल्विंग डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी तोड़फोड़ की जाए, डैमेज किया जाए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेंडलिज्म। थ्रू द सिंबल्स ऑफ जैकॉल्स, किनके सिंबल से बयान करता है, यानी ये कंपेयर करता है इन लोगों को जैकॉल्स के साथ, ठीक है, जैकॉल्स के साथ, ऐसे लोग जिन्होंने ये करवाया, जिन्होंने सिविल वार करवाया, ये जो ठग्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने खून रेजी की और करवाई, ठीक है, उनका मुकाबला, उनका कंपैरिजन ये जैकॉल्स के साथ करवाता है। जैकॉल्स मीन्स यू नो सियार, बेड़िए, बैंडिट्स मीन्स यू नो ए रॉबर और आउटलॉ बिलोंगिंग टू अ गैंग, लुटेरे, ठीक है, डाकू, स्टोन्स, पत्थरों के साथ, वाइपर्स, वेनमस स्नेक्स के साथ, फायर, आग के साथ, ब्लड के साथ, एंड बुलेट्स, गोलियों के साथ। In the end, the poet questions his own attitude by not composing poems about dreams and beauties of his homeland. तो आखिर में पॉइट जो है वो अपने आप से सवाल पूछता है कि वो अब दोबारा पोएम्स नहीं लिखेगा। कंपोज के मानिए राइट और क्रिएट, तहरीर करना। अब वो दोबारा से पोएम्स क्रिएट नहीं करेगा, नहीं लिखेगा, कंपोज नहीं करेगा। अबाउट द ड्रीम्स एंड ब्यूटीज ऑफ हिज होमलैंड, उसकी जो सिटी है, उसकी जो शहर है, मतलब मैड्रिड सिटी है, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके ख्वाबों के बारे में, उसके खूबसूरती के बारे में अब वो दोबारा नहीं लिखेगा। क्यों? बट ही क्लैरिफाइज दैट हाउ कुड ही डू इट व्हेन देयर वाज ब्लड एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैड्रिड, द ब्लड ऑफ स्पेन्स प्रॉस्पेरिटी, ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। वो कहता है, वो अपने आप से सवाल करता है कि वो दोबारा से इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं लिखेगा, क्योंकि अक्सर जो पोइट्स हुआ करते हैं वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं, पेड़ों को डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोइट्स में, अपनी पोएम्स में, पोइट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये कहता है कि वो कैसे कर सकता है जबकि हर तरफ ब्लड है, खून रेजी है, ठीक है, मैड्रिड की गलियों में खून है, ठीक है, यानी स्पेन की खुशहाली का खून है, ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का खून है। सो दीज लाइन्स, द लास्ट फ्यू लाइन्स, दीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्ट्रेट मूव ऑन टू द very first stanza. It's on the page 103. It's on the top there. I lived in a quarter in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of Castile like a sea of leather. Getting? शायर कहता है I lived in a quarter in Madrid. Madrid is the capital of Spain. Getting? ये रहता था, शायर कहता है कि मैं रहता था एक क्वार्टर में। Now what is quarter? Quarter के मानिए chamber. It means a house. It means a lodge, it means a room, it means shelter. मैं रहता था मैड्रिड में एक क्वार्टर में, एक रूम में, with bells, with clocks, with trees, है, यानी जो क्वार्टर या जो शहर हम कहते हैं, जो शहर जो था वो बेल्स से सजाया हुआ था उस शहर में, मैड्रिड में। यानी ये बेल्स ही इज टॉकिंग अबाउट द चर्च बेल्स, गिरजाघर में जो घंटियां होती है, घंटियां बजती है, उन घंटियों के बारे में बात करता है। विथ क्लॉक्स ही इज टॉकिंग अबाउट क्लॉक टावर्स, जो घंटाघर वहां पे थे। विथ ट्रीज, यानी ये जो शहर था ये सजाया हुआ था, ये डेकोरेटेड था, किन से? चर्च की घंटियों से, क्लॉक टावर से, ट्रीज से, दरख्तों से, पेड़ों से। बड़े बड़े पेड़ वहां देखने को मिलते थे, क्लॉक टावर्स वहां पे देखने को मिलते थे, बेल्स, घंटियां, गिरजाघरों की घंटियां वहां पे देखने को मिलती थी। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिले लाइक ए सी ऑफ लेदर। और वहां पे उस मकान की खिड़की से मैं क्या देखता था, वहां से देखा जा सकता था, फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिले। डियर स्टूडेंट्स, कैस्टिले इट्स अ स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश वर्ड है। नाउ व्हाट इज कैस्टिले? कैस्टिले के माने ए रीजन ऑफ सेंट्रल स्पेन, अ फॉर्मर किंगडम दैट कंप्राइज मोस्ट ऑफ मॉडर्न स्पेन। ये एक मरकजी खिता है स्पेन का, ठीक है, यानी अक्सर जो स्पेन की आबादी है वो वहां पे रहती है,
द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिले, यानी अक्सर आबादी देखने को मिलती थी वहां से। मेरे घर की खिड़की से अक्सर आबादी जो थी कैस्टिले देखने को मिलता था, मतलब ए रीजन ऑफ सेंट्रल स्पेन, अक्सर मैं वहां से देखा करता था। ए फॉर्मर किंगडम दैट कंप्राइज मोस्ट ऑफ मॉडर्न स्पेन, गेटिंग कैस्टिले, दिस इज वन ऑफ द मीनिंग्स। एंड वन ऑफ द मीनिंग इज, कुछ स्कॉलर्स ने लिखा है, वो कहते हैं कि ये एक प्लेटू है, कैस्टिले एक प्लेटू है, एक जियोग्राफिकल लैंड है स्पेन के अंदर जो खुला एक रेगिस्तान है, एक रेगिस्तान की तरह है, ठीक है। रॉकीएस्ट स्ट्रक्चर है, जहां तक नजर जाएगी वहां फ्लैट रॉक्स दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे और अगर हम बुक के पीछे देखेंगे, इसकी मीनिंग वही है, ए रीजन ऑफ सेंट्रल स्पेन, ए फॉर्मर किंगडम दैट कंप्राइज मोस्ट ऑफ मॉडर्न स्पेन, यानी अक्सर जो आबादी स्पेन की थी वो देखने को मिलती है वहां से, कैस्टिले। अच्छा, लाइक ए सी ऑफ लेदर, ना व्हाट इज लाइक ए सी लेदर? लाइक ए सी लेदर मीन्स, यू नो, इट मीन्स, अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, इसने क्या लिखा है पीछे, इट मीन्स रफ ओशन। यस, इट मीन्स रफ ओशन। सो रफ ओशन के मानी है द वेदर इज विंडी और स्टॉर्मी एंड देयर आर बिग वेव्स, गेटिंग, एज वी ऑल नो दिस कंट्री स्पेन इट्स अ कोस्टल कंट्री, ये कोस्टल समंदर के किनारे पे वाक़ा है, कोल्ड क्लाइमेट इज देयर, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो देयर, गेटिंग। सो इसीलिए रफ ओशन इसने इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स, यानी ये एक ऐसी आबादी को वहां पे देखता था। एक तो ये मतलब इसको वहां से कैस्टिले देखने को मिलता था, यानी ए रीजन ऑफ सेंट्रल स्पेन, यानी मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्पेन इसको वहां से देखने को मिलता था। और दूसरा, लाइक ए सी ऑफ लेदर। नाउ लेदर के मानिए चमड़ी, हियर इट डज नॉट, इट मीन्स रफ ओशन। एंड रफ ओशन के मानिए, वन ऑफ द मीनिंग इज द वेदर इज विंडी, यानी विंडी वेदर को देख सकता था वहां पे, और स्टॉर्मी, वो सर्द हवाएं वहां से चलती थी, लहरें वो देखता था वहां से समंदर की। एंड वन ऑफ द मीनिंग इज दैट मीन्स, यू नो इट मीन्स, यानी लोगों की चहल पहल इसको देखने को मिलती थी, यानी लोगों की रौनक देखने को मिलती थी, लोगों का हसल एंड बसल, यानी उनकी बिजी लाइफ को ये देख पाता था वहां से, ठीक है। यानी ये सब कुछ देखने को मिलता था। Are you getting me, students? Yes. Then, my house was named the house of the flowers because everywhere geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. अच्छा, very important. उसके बाद कहता है, ये जो मेरा मकान था जिसमें मैं रहता था, ये अपने मकान को फूलों का घर कहता है। ये जो मेरा मकान था ये फूलों से भरा हुआ था, क्योंकि हर तरफ जेरेनियम्स खिला करते थे। जेरेनियम, डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ प्लांट हैविंग व्हाइट, पिंक और पर्पल फ्लावर्स। यह एक किस्म का पौधा है जिसमें पिंक, व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। एक्सप्लोड के मानिए बर्स्ट और शैटर, वायलेंटली, फटना, फूटना, लेकिन यहां पे ब्लूम है, खिलना, ठीक है। द हाउस ऑफ द फ्लावर्स बिकॉज एवरीवेयर जेरेनियम्स एक्सप्लोडेड। इट वॉज अ ब्यूटिफुल हाउस विद डॉग्स एंड लिटिल चिल्ड्रन। यह ऐसे मकान में रहता था, यह ऐसे मकान में रहता था जिसमें फूल ही फूल थे, जेरेनियम्स थे, और पेट डॉग्स हुआ करते थे, और छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऐसे मकान में रहता था। माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ फ्लावर्स, यानी मेरा जो मकान था वो फूलों का मकान था, क्योंकि जेरेनियम्स हर तरफ खिलते थे, ठीक है। ये जो फूल हुआ करते थे वो खिलते थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल हाउस, मेरा जो मकान था बहुत ही खूबसूरत मकान था, जिसमें कुत्ते भी रहते थे और बच्चे भी रहते थे। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, ये जो पहला स्टंजा है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ही वाज वंस स्टेशन्ड, ही वाज वंस लिव्ड इन ए क्वार्टर हाउस in Madrid, which was decorated with church bells, clock towers, and amazingly beautiful trees. From the window of his room, he could see Castile, River Brunt. River Brunt के मानी of a loud noise, be repeated several times as an echo. With life and activity, जैसा मैंने कहा, with life and activity, busy life. He says that his house was named the House of Flowers because there were geraniums blooming everywhere. His house was a beautiful house where dogs and little children lived too. Getting? यानी इस स्टंजा में ये बताता है, Madrid symbolizes beauty and prosperity. Madrid symbolizes beauty and, यानी मैड्रिड क्या दिखाता है, किस चीज को पिक्चराइज करवाता है
किस चीज की निशानदेही करवाता है? ब्यूटी, खूबसूरती। ये जो शहर था बड़ा खूबसूरत था और प्रॉस्परस था, प्रॉस्पेरिटी थी वहां पे, खुशहाली थी, बखत था। अच्छा, देन लेट अस मूव अहेड। रॉल, यू एग्री राफेल, फेडरिको, you agree beneath the earth, you agree about my house with balconies where the light of June drowned flowers in your mouth, brother getting? अच्छा, उसके बाद क्या था, क्या कहता है? रॉल, यू एग्री। उसके बाद ये सहमति लेता है अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों को पुकारता है। जो उसके दोस्त कहां हैं? दे आर beneath the earth, they are under the ground, they are buried under the ground, वो बिल्कुल दफन है। ये उनसे सहमति लेता है। ये कहता है यू एग्री, आप राजी हो इस बात से जो मैं कहता हूं आपसे? यू एग्री राफेल, एक दोस्त से कहता है। फेडरिको, यू एग्री, आप इस बात से राजी हो, आप मुतफिक हो जो मैं कहता हूं? बीनीथ द अर्थ, यानी इनकी कब्र पे बैठ के कहता है, आप एग्री करते हो इस बात से? यू एग्री अबाउट माई हाउस विद बालकनीज, आप एग्री करते हो मेरा जो हाउस है, जिस हाउस में बालकनीज थी, यानी बालकनी के मानिए वरंडा, ठीक है? ये वो जगह होती है जो हम एक्सटेंड करते हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि आप एग्री करते हो ना, यू एग्री अबाउट माई हाउस, आपको इस बात पे सहमति है, आप इस बात पे राजी हो मेरे मकान के मुतालिक जो मैं बात कहता हूं, यानी उसकी बालकनी पे क्या हुआ करता था? उसकी बालकनी पे फूल हुआ करते थे, यानी जून के आते ही, जून के महीना जब आता था, जून का महीना जब आता था, यानी समर जब आता था, तो उस समर में फूल खिलते थे। गेटिंग? फूल खिलते थे, और वो फूल जो थे उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती थी जितना हमारा माउथ, यानी हमारे माउथ तक उन फूलों की हाइट बढ़ जाती थी। द लाइट ऑफ जून ड्राउन फ्लावर्स इन योर माउथ, ठीक है? यानी आपका जितना कद है, आपके माउथ तक उनकी हाइट बढ़ जाती थी उन फूलों की। ब्रदर, आर यू गेटिंग मी? एक्चुअली he is saying that in these lines the poet recalls his friends, वो अपने फ्रेंड्स को पुकारता है, रॉल, राफेल एंड फेडरिको, who used to visit his home, जो अक्सर इसके घर आया करते थे। They were killed during the Spanish Civil War and are lying buried under the earth. Addressing to them, he says they would agree with what he would say about the house. वो एग्री करेंगे इस बात से जो ये कहेगा अपने मकान के बारे में। इट वॉज द हाउस विद बालकनीज वेयर विद द कमिंग ऑफ जून फ्लावर्स ग्रू एज टॉल एज टू रीच ऑलमोस्ट द माउथ ऑफ अ स्पीकर। ही कॉल्स दोज फ्रेंड्स हिज ब्रदर्स। गेटिंग? So that's all we have in this lesson.